Good evening, everyone. Welcome to Gradeup MBA Prep channel. So today we have the third session on data interpretation. I hope some of you must have watched the previous two and must have been enjoying this session. Right. So today we'll have one more session on data interpretation, and are you all set for the session? We'll discuss some sets today, including graph based. We will see arithmetic based also, and different sorts of sets. Okay, and I am sure you must have attended the previous two classes also. Okay, so data interpretation, as I told you, that it is important in CET because you do get three sets which is around 15 to 18 questions in the CET examination. So that is a good chunk of your paper, and the good thing is these are group questions. So if you solve individual 4 questions of quant, you could better solve 6 questions of a DILR set, right? So it is always better to go for a group questions in the examination. Okay, so this announcement that this sale is ending tonight, so you just have less than 2 hours for this, so you can use this code SAFE55 to avail 55% discount on our courses if you have not yet done, right? So and you are thinking at the last moment that should I do or not, I would say that you should go for it, right? You are getting these courses at very reasonable price. If you see the market prices, these are quite high. You can get these courses at a very discounted price if you purchase using this code, and the offer ends today midnight. Okay. So we have launched this course for CAT 2021, which is a weekday batch, the second batch, weekday batch. So we had a lot of demand for our second batch. One batch was already full. So if you are enrolling with us, you can join this batch and you can start fresh with your preparation for CAT 2021. All right, so let's begin with today's class. Please do share this session with your friends who are preparing for MAH CET. Right, if we do get a good response from you all, then we will continue this series. Right, if you do not see enthusiasm from your side, what is the point for us putting efforts to bring such questions in front of you, right? So please do bring your friends along for this series, right? So this is the first graph. It says that the graph represents the population in thousands of 6 towns of a district. Okay, and then the table gives the ratio of men to women and of women to children in these 6 towns. ठीक है, तो पहले ग्राफ में क्या दे रखा है, जो ग्राफ है उसमें आपको पॉपुलेशन दी है 1000 में. जैसे पहले पी की पॉपुलेशन है 80,000, इट्स नॉट 80, इट इज 80,000. ठीक है, ऐसी 6 प्लेसेस की है, उनकी पॉपुलेशन दी है. और दूसरे जो टेबल है उसमें मेन टू वुमेन रेशियो दिया है एंड वुमेन टू चिल्ड्रन रेशियो दिया है. सो यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. Okay, so how will we do these questions? Any idea कि किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम जैसे पहला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ मेन इन टाउन टी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन इन टाउन आर. सो हाउ विल वी फाइंड दिस, राइट? कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन कैसे निकालेंगे? It's based on the concept of ratios. Can anyone tell how would we do this? किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? कोई आइडिया किसी को? जैसे डायरेक्ट रेशियो दिया होता मेन रेशियो वुमेन और मेन और वुमेन दिए होते तो यू कुड हैव फाउंड आउट, राइट? बट दे हैव गिवन 2 रेशियोज, मेन रेशियो वुमेन एंड वुमेन रेशियो चिल्ड्रन. So how do we find? So you know this concept of finding ratios between 3 numbers, right? आपको पता है कि 3 नंबर का रेशियो कैसे निकालते हैं. जैसे P में दे रखा है मेन रेशियो वुमेन 3:2, मेन रेशियो वुमेन है 3:2 और वुमेन रेशियो चिल्ड्रन कितना है 6:5. ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड रेशियो बिटवीन 3 टर्म्स? पहले क्या करते हैं,
2 और 6 का एलसीएम ले लो. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 6? 6. करेक्ट. सो इन ऑर्डर टू मेक इट 6 वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा. राइट. एंड दिस इज 6 5, सो इट विल रिमेन 9:6:5. ओके. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स. ओके. अगर 2 रेशियो दिए, सपोज ये क्वेश्चन है, हमें टी और आर का निकालना है. राइट. यू विल हैव टू इक्वेट द रेशियो. सो टी और आर का निकालना है. सो टी का रेशियो कितना आएगा? 3:2 है और क्या है? 7:6. राइट. सो इफ यू टेक द कॉमन रेशियो, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? ये कॉमन है. 2 और 7 का एलसीएम होता है 14. सो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21 और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 2 से करोगे. राइट. 7 2 14, 6 2 12. सो दैट इज द रेशियो. ठीक है. ये निकाल दिया. आर में रेशियो कितना आएगा? 5 9 और 3 1. 5:9, 3:1. ठीक है. 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 9 होता है. तो ये तो 5 और 9 ही रहेगा. 3:1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 3 3 जा 9, 1 3 जा 3. सो ये रेशियो आ गए. Okay, so you should know how to find the ratio between two numbers. If you are given A ratio B and B ratio C, you should be able to find A ratio B ratio C. वही करना है इस पूरे सेट में. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मैन इन टाउन टी. टाउन टी में कितने मैन है? 21 आउट ऑफ कितने में से? 35 + 12 47. ठीक है. इनटू टीम कितना? 94. 2 टाइम्स विच इज 42. ठीक है. ये नंबर ऑफ मैन इन टाउन टी है 42,000. ठीक है. नंबर ऑफ वुमेन इन टाउन आर, ये आर वाला रेशियो, टी वाला रेशियो था या आर वाला था. वुमेन कितनी है? 9 आउट ऑफ 5 + 9 + 3 17. 9 आउट ऑफ 17 ऑफ आर की पॉपुलेशन कितनी है? 85 इंटू 85. 5 टाइम्स दैट इज 45,000. ओके. सो द क्वेश्चन इज 42,000 is what percentage of 45,000? So your answer will be 42/45 into 100. Correct. तो ये आ जाएगा 14/15. ठीक है. अब 15, अगर आपको 14/15 निकालना है, 1/15 you know 1/15 is how much? 6.67%. Right. 6.67%. तो 14/15 के लिए 100 - 6.67 कर दो, कितना आ जाएगा? 93.33. ठीक है. योर आंसर विल बी 93.33%. यस प्रतीक, योर आंसर इज राइट. बाकी लोगों को आ गया समझ में? हाउ डिड वी डू? सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल इक्वेट द रेशियोस, वी विल क्लब द रेशियो एंड वी विल फाइंड द रेशियो बिटवीन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट. राइट. तो अभी सारे रेशियो मत निकालो, जिसमें जरूरत होगी तब निकाल लेंगे. ठीक है. आई होप कुछ लोगों ने तो सारे रेशियो निकाल भी लिए होंगे अब तक. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस थिंग. विच टाउन हैज द हाईएस्ट मेन टू चिल्ड्रन रेशियो? किस टाउन में मेन टू चिल्ड्रन रेशियो सबसे ज्यादा है? अब उसके लिए आपको पॉपुलेशन तो चाहिए नहीं, you just need to find these ratios. अच्छा, अभी हमने एक रेशियो निकाला था ना, 9:6:5. ठीक है. आर का भी निकाल लिया था 5:9:3 और टी का भी निकाल दिया था 21:14:12. राइट. देयर आर 3 others. राइट. यू, एस और क्यू, 3 और रेशियो निकाल लो. 3 तो पहले क्वेश्चन में बता दिए थे मैंने. यू फाइंड दीज 3 रेशियोज एंड टेल हाईएस्ट मेन टू चिल्ड्रन रेशियो क्या होगा. दिस इज मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो मेन टू चिल्ड्रन रेशियो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सी वन थिंग यू रिमेंबर, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हाईएस्ट पूछा होता है, हाईएस्ट या लोएस्ट. ठीक है. हाईएस्ट या लोएस्ट पूछा होता है तो आपको क्या ऑप्शन दिए? पी क्यू आर टी. राइट. यू आर गिवन 4 ऑप्शन पी क्यू आर टी. इसका मतलब एस में नहीं है, यू में नहीं है. सो नो नीड टू कैलकुलेट फॉर दोस. ठीक है. इसका मतलब नहीं कि आप सारा कैलकुलेट कर रहे हो. हाईएस्ट पूछा है
तो हाईएस्ट इन चारों में से ही होगा, राइट। 3 का हमने निकाला ही था, डोंट फाइंड फॉर एस, डोंट फाइंड फॉर यू, आई मीन दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, अभी के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप क्यू का निकाल दोगे 4 5 5 4, तो ये तो सीधे सीधे हो गया 4:5:4, ठीक है। अब मेन टू चिल्ड्रन रेशियो पूछा है, तो मेन रेशियो चिल्ड्रन, तो 9:5 अप्रोक्सीमेटली 1.8 होता है, राइट। 9/5 कितना होता है, 1/8, 1.8। 4:4 इज 1, तो ये तो हाईएस्ट होगा ही नहीं। 5:3 इज 1.67, राइट। एंड 21:12 विल बी 21/12 करोगे तो कितना आएगा, 7/4 विच इज 1.75, राइट। द हाईएस्ट इज इन टाउन बी, करेक्ट। सो कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है ग्राफ बेस्ड या किसी डीआई में, कभी भी हाईएस्ट पूछा होता है, डू नॉट कैलकुलेट ऑल वैल्यूज, ओनली चेक फॉर द गिवन ऑप्शन, राइट। दैट इज कॉमन सेंस। अगर आप एस का निकाल लो, यू का निकाल लो, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज नॉट द हाईएस्ट, ओके। Okay, if 70% of the men, 75% of the women and 90% of the children of town S are literate, what is the number of illiterates in town S? 70% men, 75% women और 90% children town S के literate है। You have to tell the number of illiterates in town S. सो एस का रेशियो निकाल लो, दैट विल बी इजी, 7 8 4 5 ना, तो 7:8 हो जाएगा, ये 4:5 था तो 8:10 हो जाएगा, 7:8:10। सो फाइंड द नंबर ऑफ मेन, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड फाइंड द नंबर ऑफ इलिटरेट्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। So these are type of DI sets you can expect in the examination, right? एक चार्ट दे देंगे, उसके साथ एक टेबल दे देंगे, राइट। चार्ट में कुछ वैल्यू होंगी, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ कुछ भी दे देंगे, एंड देन देयर विल बी अ टेबल, उसमें रेशियो दे देंगे, ठीक है, या परसेंटेज दे देंगे, एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। Since CET dates are not announced, right, but अभी से तैयारी करते रहो, राइट। CET होना तो चाहिए क्योंकि एक साल के लिए सीट्स वैकेंट तो जा नहीं सकती, राइट। दे विल हैव द एग्जामिनेशन, सो बी पेशेंट एंड इट्स अ गुड टाइम, इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी में बदलो, प्रैक्टिस मैक्सिमम करो सो दैट यू कैन गेट गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन, ओके। ओके, सो संदेश हैज कैलकुलेटेड इट। एनीवन एल्स? Yes, Salman, what is your question? Okay, Abhishek also says B. चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 10 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 7 आउट ऑफ 25। आई होप रेशियो इतना सबको आता होगा, 7 आउट ऑफ 25 ऑफ पी एस पूछा है ना, ऑफ 75, मतलब 3 गुना हो रहा है टोटल का, तो 3 21 मैन है, 21 वुमेन है, 24 और चिल्ड्रन है 30, करेक्ट। ये मेन वुमेन चिल्ड्रन की पॉपुलेशन। अब देखो एक और कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं, यहाँ पे आपको कितने दिए, कितने परसेंट लिटरेट है, और पूछा क्या है, कितने इलिटरेट है। सो डू नॉट फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट, रादर 70% आर लिटरेट, सो 30% illiterate, right? 75% women are literate, right? Literate, so 25% will be illiterate, okay. 90% of are literate, so 10% illiterate, okay. So do not calculate the number of literates, rather directly find the number of illiterates, okay. So 30% is 6.3, ठीक है। 24 का 25% हो जाएगा 6, 1/4 होता है। कुछ परसेंटेजेस भी याद कर लो, ये हेल्पफुल होती है। 25% होता है 1/4, ठीक है। 20% होता है 1/5, 10% होता है 1/10, राइट। 33.33% होता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। इफ 1/3 इज गिवन, यू कैन यूज
33.33%, राइट। 40% होगा 2/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 6 हो गया। और तीसरा क्या है, 30 का कितना परसेंट पूछा है, 30 का है 10%, दैट इज 3। सो ऐड कर दो 12.3 प्लस 3 15.3, सो 15,300। ओके, आंसर इज करेक्ट। चलो अभी संदेश ने सबसे पहले जवाब दिया था, अभिषेक, प्रतीक, you also got it right. Okay, so let's look at the next question. How many towns have at least 25% of their population as children? Okay, Salman, you have academics are not good. So Salman, there are certain institutes, I mean, see, you should, of course, you cannot do anything about your academics, but you can definitely do well in the examination to maximize your score, right? And hope for like some, so there are some non-IMs also, they do not consider, they do not pay much weight to academics. Like there is institute called MDI, right? And then you can target your IFT, right? You can target XLRI. So these are they do not consider academic background, right? So those are the things that you can target, right? In IMs also, since you are non-engineer, that you are commerce background, maybe you might get that privilege, but still you will have to score very, very high, right? So first priority should be scoring high. So you know that you have already lost the battle on one ground, so try to maximize your score, right? And then see that if it leads to somewhere. Okay, but you should keep these institutes in mind that do not consider academics, right? So those are definitely the places where you can get a better chance. Okay, so at least 25% of their population as children. अभी तक हमने सभी के लगभग ratios निकाल लिए थे, right? We calculated 9:6:5, ठीक है। इसमें क्या था, 4:5:4, and then we had 5:9:3, ठीक है। इसका रेशियो भी हमने निकाला था अभी 7, 8, 10. This is 21:14:12, and the last one will be 12 रख लोगे ना, 4, 3, 12, so 9:12:8, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है एटलीस्ट 25% ऑफ द पॉपुलेशन एज चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन कितने, 5 आउट ऑफ, देखो पी में अगर चिल्ड्रन की बात करें तो कितना होगा, 5 आउट ऑफ 5 + 6 + 9, मतलब 5 आउट ऑफ 20, राइट। 5 आउट ऑफ 20 इज 25%, ठीक है। इसमें 25% है, मतलब 1/4, 25% इज 1/4, ओके। एंड देन 4/, ये 4/13, 4/13 तो ज्यादा ही है, ग्रेटर देन 25। 3/17, 3/17 नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये ज्यादा है। 10/25, 10/25 40% है, ज्यादा है। 12 this is what 26/47, 12/47 ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा है। और ये आ जाएगा 29, 8/29, ये भी है, ठीक है। अब नाउ will the answer be 4 or will the answer be 5? The question is, should the answer be 4 or should the answer be 5? देखो यहाँ क्या कह रहा है, एटलीस्ट 25%, एटलीस्ट 25% मतलब मिनिमम 25%, 25% भी वी विल कंसिडर दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज 25%, ठीक है। वहां पूछे, इट इज नॉट सेइंग मोर देन 25%, इट इज सेइंग एटलीस्ट 25%, इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 25%। तो अगर 25% भी है तो वी विल ऑल्सो काउंट दैट, सो देयर विल बी 5 सच टाउन्स, ओके। सो द आंसर विल बी 5, yes. Pratik, I think you did not consider P because it was exactly 25%. So know this difference. ये चीज ध्यान देना कि at least और at most इन सब का मीनिंग क्या होता है। at least का मतलब होता है कम से कम 25, right? So 25 भी है, so you will count that also. All right? Okay. So enjoying this session, please do like this session and do share it with your friends, right? We do not see a lot of crowd in these sessions. बहुत मेहनत से ये सेशन कराते हैं, सो यू शुड हैव सम गुड क्राउड हियर, राइट। तभी मजा भी आता है, राइट। यू कम्पीट विद लॉट ऑफ पीपल, सो यू नो
अगर आप 20 लोगों में प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लगता है कि मैं टॉप हूँ, बट अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में करोगे तब आपको रियलिटी चेक आता है कि हाँ यार इतने लोग एस्पिरेंट हैं, वेयर डू आई स्टैंड, राइट। ओके, सो दिस इज अरिथमेटिक बेस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि बैंक आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, आईबीपीएस टेक मतलब आईबीपीएस बैंकिंग वगैरह के एग्जाम भी कराते हैं, उसमें अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी आते हैं, राइट। सो लेट अस प्रैक्टिस वन अरिथमेटिक बेस्ड डीआई। ठीक है, हमने अलग अलग तरह के डीआई प्रैक्टिस किए हैं सीरीज में, सो आज एक अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी कर लेते हैं। ठीक है, so it says that train X can cross a pole and a platform of 320 meters in 11 seconds and 27 seconds respectively. Train X can cross another train Y moving in opposite direction in 9 seconds. The length of train Y is 35 meters less than that of train X. Train Z is 25% longer than train X. So पूरी कहानी लिखी है, तो आपसे पूछा ट्रेन Y and Z क्रॉस इच अदर, सो पूरी स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, सो सॉल्व दिस ट्रेन्स एंड इन सबके तो क्वेश्चंस आपने किए होंगे ट्रेन्स के स्पीड टाइम डिस्टेंस में, अरिथमेटिक तो प्रैक्टिस करते ही होगे, राइट। देयर दे आस्क दीज क्वेश्चंस। तो ऐसा भी हो सकता है आपको पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसी चीज पे आ जाए। ठीक है, पूरा अरिथमेटिक बेस्ड आ जाए। ठीक है, पूरा रेशियो, देखो क्या होता है परसेंटेज और रेशियो बेस्ड तो आता ही है। कभी ऐसा हो गया आपको प्रॉफिट लॉस से दे दिया, ठीक है, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस से दे दिया, या पाइप्स एंड सिस्टम से दे दिया, तो किसी भी टॉपिक से भी ऐसा भी हो सकता है, इनसे भी डीआई आ सकता है, राइट। बिकॉज आईबीपीएस है, आईबीपीएस जनरली आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ओके, फॉर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक, मैं आपको एक बहुत आसान सी चीज बता रहा हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक चीज याद रखना, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर बस एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पूरा चैप्टर इससे हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना, बस टीएसडी लिख देना। टीएसडी फ्रेमवर्क होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन देयर आर टू बॉडीज, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड पता है, जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सो देयर रिलेटिव स्पीड इज a माइनस b। ठीक है, इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर रिलेटिव स्पीड इज a प्लस b। ठीक है, और d होता है सम ऑफ लेंथ। जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे ऐसे सॉल्व कर लेना, t इंटू एस इज इक्वल टू डी। सो टू थिंग्स विल बी गिवन टू यू, वन थिंग विल नॉट बी गिवन, तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो विल टाइप 3-4 सिनेरियोस जो दिए हैं, और आप देखोगे कि उससे आप बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो दो चीज हमेशा दी होती है, तीसरी चीज मिसिंग होती है, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अगर एक ही चीज देंगे, दो चीज मिसिंग कर देंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट। अगर मैं कहता हूँ खाली टाइम दे दूंगा, आई आस्क यू स्पीड, आई आस्क यू डिस्टेंस, कैन यू टेल, नो, बट इफ आई गिव यू टाइम एंड डिस्टेंस, आई कैन आस्क यू स्पीड। ओके, okay, Prateek has solved this part at least, good. So now see this thing, what I was telling about time, speed and distance. देखो पहला सिनेरियो देखते हैं, ट्रेन X can cross a pole and a platform of 320 meter long in 11 seconds and 27 seconds respectively. ठीक है, सपोज ट्रेन 11 जब पोल पार करती है तो वो 11 सेकेंड्स लेती है। ठीक है, तो 11 सेकेंड्स लेती है, इसका मतलब टाइम कितना है, 11 है। What is the length of the train? We do not know, right? Speed of the train? We do not know. ठीक है, दूसरे केस में क्या करती है, वो 27 सेकेंड्स लेती है, स्पीड वही रहेगी, और लेंथ कितनी हो जाएगी, सम ऑफ लेंथ कितनी, सपोज उसकी लेंथ L है। ठीक है, लेट अस से उसकी लेंथ L है, और इस केस में कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ, देखो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 320 प्लस L। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, स्पीड कितनी है, L अपॉन 11 इज इक्वल टू
L प्लस 320/27, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27L इज इक्वल टू 11L प्लस 320 इंटू 11, ठीक है। तो 16L आ गया आपका 320 इंटू 11, और L आ गया आपका, यहाँ से डिवाइड कर दोगे 20 यानी कि 220, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन है 220, ठीक है। ट्रेन एक्स की लेंथ होगी 220। अब क्या दे रहा है, ट्रेन एक्स कैन क्रॉस अनदर ट्रेन वाई मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखो ट्रेन एक्स की, अच्छा पहले इसकी स्पीड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें तो क्या पूछा है, ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन वाई 35 मीटर्स लेस, तो इसकी लेंथ 220 है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 185, दैट इज करेक्ट, ठीक है। 225 माइनस 35 185 हो गया। अच्छा इसकी स्पीड भी निकाल लो ना, L अपॉन 11, L कितना था 220 था और 11, तो स्पीड इसकी 20 है, ठीक है। X की स्पीड 20 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन Z। अच्छा चलो अभी पहले Y की निकालते हैं फिर Z की निकालेंगे। अब जब X और Y क्रॉस कर रहे हैं, X कैन क्रॉस अंदर ट्रेन Y मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स, ठीक है। X और Y क्रॉस कर रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है 9 सेकेंड। स्पीड हमें नहीं पता है, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस क्या था, सम ऑफ लेंथ। X की लेंथ 220 थी, Y की 185, सो व्हाट इज द डिस्टेंस 405, करेक्ट। 405, स्पीड कितनी हो जाएगी 405 डिवाइड बाय 9, दैट विल बी 45 मीटर पर सेकेंड, बट दिस इज relative speed, okay, this is relative speed, right। Yes, you can trick by that method also, yes that's correct, right, it's a multiple of 11, right, that was a coincidence for that particular question, yes you can use that, okay। Now see, this speed is 45. This is what? This is speed of X and Y because they are moving in opposite direction. So X plus Y is 45. X is 20, so Y will be 25. Right? So Y की speed आ गई 25. अब इसमें क्या पूछा है? Z की speed पूछी है, right? Now train Z is 25% longer than train X. तो Z की length कितनी हो गई? 25% means 1/4 long. 220 plus 220 का 1/4 that is 55. So train Z हो गई 275 meters, करेक्ट। सो एक बार x y z सबकी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ और स्पीड, इसकी 220 थी, इसकी 185 है, इसकी 275 है। x की स्पीड 20 निकाल दी थी, y की 25 निकाल दी, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ z, राइट। अब जब y और z मूव कर रहे हैं, when trains Y and Z are moving, so they cross each other in 10 seconds. Time is 10 seconds, correct? Time is 10 seconds. They are moving in opposite directions, so we have to find speed, right? Of course, we have to find speed. We know the distance, the sum of length. Distance is what? Sum of length. So distance will be 460. Distance हो जाएगा 460, correct? Sum of length. And what will be the time? And sorry, what will be the speed? 460 by 10, that is 46. 46 is y plus z, correct? Y की वैल्यू कितनी है? 25 है, so z की वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड will be the answer. Okay, so ट्रेन की कोई भी क्वेश्चन होते हैं, just put this framework, right? Time, speed and distance. Speed is the relative speed. If two trains are moving in opposite direction, their speeds will add up. If they are going in the same direction, their speeds will be subtracted. And distance is sum of lengths of trains. और जब पोल होता है तो पोल की लेंथ तो 0 हो जाती है, इसलिए वो सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं, ठीक है। इस फ्रेमवर्क में रख के करोगे, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको यही फॉर्मूला याद करना है, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस। और स्पीड कहाँ पे, स्पीड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो रिलेटिव स्पीड हो सकती है, और डिस्टेंस क्या है, सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग। क्लियर है? गॉट दिस आंसर 21? कितने लोगों का आया? कमेंट कर दो, आंसर आ गया, यस समझ में आया, नहीं आया?
तब आगे बढ़ेंगे। फिर हमने बेसिकली क्या किया है, इसी मेथड को यूज कर करके सारा डेटा फिल कर दिया, राइट। पहले हमें x के बारे में पता लगाया, x की स्पीड पता लगाई, फिर y की स्पीड पता लगा ली थी, लेंथ हमने पता लगा ली थी, सो देन वी फाउंड द स्पीड। इफ ऑपोजिट हैड नॉट बीन मेंशन्ड इट विल बी मेंशन्ड, ओके, वरना क्वेश्चन ही गलत होगा, मेंशन होगा क्वेश्चन में, राइट। इफ इट इज क्रॉस इज टेकन इन सेम डायरेक्शन, नो नो नो, इट विल बी गिवन, राइट। देखो अगर ओवरटेक वर्ड दिया है, ओवरटेक मीन्स सेम डायरेक्शन, राइट, ओवरटेक मीन्स सेम डायरेक्शन, बट इफ इट इज सेइंग दैट दे आर क्रॉसिंग, जनरली दिया रहता है, इट विल ऑलवेज बी रिटन ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन Y टू क्रॉस अ 60 मीटर लॉन्ग ब्रिज। Time taken by train Y to cross a 60 meter long bridge. Put this from framework. आपको टाइम निकालना है, so speed you should know, distance you should know. अभी निकाली थी पिछले उसमें हमने x y z तीनों की स्पीड निकाली थी और लेंथ भी पता है, राइट। सो कैलकुलेट इट, अब तो फटाफट निकल जाना चाहिए। सो यू माइट गेट क्वेश्चंस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है। तो एक तरह से अरिथमेटिक का भी रिवीजन हो गया, एक टॉपिक TSC, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हमने कर लिए। ट्रेन के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब आई होप यू शुड नेवर फॉरगेट दिस थिंग, राइट। इस तरह से करोगे कोई फॉर्मूले भी याद नहीं करने, बस बेसिक चीज, बेसिक फैक्टर रिमेंबर करना है कि स्पीड जो होती है वो रिलेटिव स्पीड लेते हैं जब दो बॉडीज मूव कर रही होती है, और डिस्टेंस लेते हैं सम ऑफ लेंथ, ओके। सो स्पीड हमें दी है 25, अभी निकाल ली थी। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी सम ऑफ लेंथ, यहाँ पे 60 मीटर का तो ब्रिज है, y की लेंथ कितनी है 185, 185 प्लस 60 245, 245 को आप डिवाइड करोगे 25 से तो आ जाएगा 49/5, यानी कि 9.8 सेकेंड, करेक्ट है, 9.8 इज द राइट आंसर, ओके। इफ ट्रेन्स x एंड y आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो अभी कौन पूछा था, डायरेक्शन नहीं दिया होता है, डायरेक्शन दिया है सेम डायरेक्शन, ओके। इन हाउ मच टाइम वुड द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर वन। Trains X and Z are going in the same direction. In how much time will the faster train overtake the slower one? वो तो कॉमन सेंस है, फास्ट जो तेज ट्रेन होगी वही ओवरटेक करेगी ना धीमी वाली को। नो प्रॉब्लम अभिषेक, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, ठीक है। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जब ये वीडियो ओवर हो जाएगा उसके बाद आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो और कितनी भी बार देख सकते हो। देखो वही फ्रेमवर्क पे रखने की कोशिश करो, अभी से ऐसी प्रैक्टिस कर लो, मतलब जो अगर आप कोई अपना मेथड यूज करते हो दैट्स फाइन, जो लोग उतना फ्रीक्वेंट नहीं है इस मेथड पे, यू कैन यूज दिस TSC फ्रेमवर्क टू सॉल्व इट फास्ट, राइट। आपको टाइम निकालना है, राइट। सो यू शुड नो स्पीड, यू शुड नो डिस्टेंस। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज रिलेटिव स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस इज सम ऑफ लेंथ, राइट। चलो हम x और z की बात करते हैं। x की स्पीड थी 20, लेंथ थी 220, ठीक है। z की स्पीड थी 21, राइट, और लेंथ कितनी थी 275, क्लियर है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी 1, डिस्टेंस हो गया 495, मतलब टाइम होगा 495 सेकेंड, दैट इज 8 मिनट 15 सेकेंड। कितनी जल्दी हो गया कि नहीं। फॉर्मूले लगाओगे, कहाँ पे प्लस करना है माइनस करना है वो सब सोचना पड़ेगा, राइट। लोग फॉर्मूले बताते हैं इसके कि क्या कहते हैं ये सब होता है, ये सब, बस ये चीज ध्यान रखो ना, फॉर्मूले क्यों इतने फॉर्मूले रख के
Like better to understand things than to build, memorize things, right? If you understand things, you will never forget, isn't it? याद रखोगे फॉर्मूले किसमें क्या, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, कंफ्यूज होके गड़बड़ कर सकते हो. बट अगर कॉन्सेप्चुअली समझ लिए कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, राइट? डिस्टेंस इज सम ऑफ लेंथ. ठीक है, देखो कितनी जल्दी हुआ, हमें स्पीड पता थी, लेंथ पता थी, फटाफट आंसर आ गया. 8 मिनट 15 सेकेंड, राइट? काजल, प्रतीक, यस, करेक्ट आंसर. व्हाट अबाउट अदर्स? औरों का नहीं आया? अगर आप पहले क्वेश्चन से देख रहे हो तो हमने तो वैल्यूज पहले निकाल ली थी, ऐसा भी नहीं था कि आपको नई वैल्यूज निकालनी थी. वैल्यूज वर ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके, पहले क्वेश्चन में नहीं पता थी, धीरे धीरे हमने सारी वैल्यूज निकाली, राइट? चलिए आगे बढ़े फिर, लेट्स मूव अहेड. Train Z took 11 seconds to pass a man running in the opposite direction. How long will the man take to cross a platform which is 120 meter long? ठीक है, अब स्टोरी और आगे बढ़ा दी. ठीक है कि अभी तो जो स्टार्टिंग में दिया था एक्स वाई वाई जेड, फिर एक्स जेड पूछ लिया, अब जेड और एक मैन भाग रहा है. ठीक है, वही करना है. यूज टीएसडी फ्रेमवर्क, यूज टीएसडी फ्रेमवर्क, राइट? सी देखो, पहले केस में क्या है, 11 सेकेंड्स टाइम दिया है. स्पीड कितनी है? स्पीड नहीं पता है. ठीक, स्पीड नहीं पता है क्योंकि वी हैव द मैन ऑल्सो रनिंग. व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन. वाई? देखो आदमी का, देखो आदमी कितना चौड़ा होगा, राइट? ही विल हार्डली बी लाइक हाफ अ मीटर, राइट? एक आधा मीटर भी कोई आदमी चौड़ा नहीं होता, राइट? लाइक इफ यू सी दिस थिकनेस, राइट? सो दैट इज नेग्लिजिबल. So we consider man, pole and other small objects as negligible, zero. एक पोल की width कितनी होती है? कुछ सेंटीमीटर होती है. So that's why we consider that as zero. So sum of length will be the distance. So train YZ की बात करें, speed है उसकी 21, right? Length है 275. So इस केस में distance कितना रहेगा? 275 ही रहेगा, correct? 275 ही distance रहेगा. Speed कितनी हो जाएगी? Distance upon time, that is 25. Now they are running in opposite direction. So Z plus man is 25. Correct? See, speed is relative speed. Z is 21, man की speed हो जाएगी 4. 120 मीटर भागना है, 120 को 4 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 30 seconds. Right? You do not need 30 seconds to solve such questions. Okay, so once you have understood this concept, ये हमने एक अच्छे से एक नहीं, दो नहीं, 4-5 क्वेश्चन में अप्लाई कर दी. अब तो समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट. टीएसडी फ्रेमवर्क, राइट? रिमेंबर दिस, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे. आपको बस यही ध्यान रखना है कि देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, राइट? स्पीड की डेफिनेशन चेंज हो गई है. स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस मीन्स सम ऑफ टेंस. क्लियर है? नया कॉन्सेप्ट सीखा, कितनों को ये मेथड पहली बार पता चला? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट टू लर्न दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट यू कैन सॉल्व विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूले, जस्ट रिमेंबरिंग दैट देयर इज जस्ट वन फॉर्मूला इन द एंटायर चैप्टर, राइट? सो दिस इज दिस समथिंग न्यू टू ऑल ऑफ यू? और हाउ मेनी ऑफ यू वर यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स? New thing or something that you already knew and were using previously also? And I'm sure most of you would not be using such thing. You must be relying on some formula or some method, right? Time लगता होगा करने में, but now you will realize that you can solve these questions very fast, isn't it? Right? Okay, so got the answer. 30 seconds. 30 seconds आंसर आ गया. ठीक है, वही कर रहे हैं. स्पीड, डिस्टेंस इज सम ऑफ लेंथ. तो यहाँ पे 275 है, मैन 0 है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल दो. ठीक है, दो चीज दी होंगी, तीसरी चीज निकालनी है. आइदर यू हैव टू, इफ यू हैव टू फाइंड स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक ट्राइंगल बनाते हैं ना ऐसे, DST का. ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट? सो हमने निकाल दिया. तो ये स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड का सम है. इसकी स्पीड 21 है तो 4 हो गई. करेक्ट?
All right. So Rosh, Pratik, they knew this thing. That's good, right? Okay. All right. So let's move ahead. ठीक है. So we have this course also. एक क्रैश कोर्स भी है हमारा MAHCET 2021 का, right? So अगर कोई कोर्स में एनरोल होना चाहता है, where we have this all things in detail और mock test वगैरह वो सब भी हैं इसमें. So you can enroll in this course getting Gradeup super subscription. Okay. चलो एक और सेट कर लेते हैं, राइट? और डन फॉर द डे. एक और कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कर ही रहा है, राइट? सो इट सेज दैट द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, 5 कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए और ये दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एम्प्लॉयज. टोटल 17,000 मेल एम्प्लॉयज है एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम. ठीक है, so let's solve this question. The first question says that if the total employees working in these companies are represented on a pie chart, what will be the central angle of the total employees from HPCL? बहुत आसान सा क्वेश्चन है पहला वाला. So it shows the number of employees in 5 different कंपनीज, राइट? और ये दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एम्प्लॉयज. ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए व्हाट डू यू नीड? यू जस्ट नीड दिस ग्राफ. ओके, ये पाई चार्ट पे ध्यान नहीं देना है. सॉल्व करो इसे. आता है सेंट्रल एंगल निकालना आता है? देखो पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है, पाई चार्ट का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. ठीक है, सो सेंट्रल एंगल कोई भी निकालना होता है तो दैट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 करना होता है. ठीक, जो भी उसकी वैल्यू है, जिस चीज की वैल्यू पूछी है अपॉन टोटल वैल्यू. जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, मान लो 480 लोग हैं. ठीक है, और माय वैल्यू इज 160. ठीक है, तो 160 आउट ऑफ 480 इंटू 360 डिग्री, सो 1/3 हो गया, तो 120 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल. सो इट्स सेइंग दैट टोटल एम्प्लॉइज वर्किंग इन दीज कंपनीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ पाई चार्ट. ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज को पाई चार्ट में दिखाएंगे. मतलब ये कह रहा है कि अगर ये बार ग्राफ की जगह पाई चार्ट होता, राइट, तो HPCL कितने डिग्री होता. समझ में आ गया? चलो करते हैं इसे. पहले टोटल एम्प्लॉइज निकाल दो. 42, 62, 104, 105, 141, 141 प्लस 126, 267 आ रहा है. ये टोटल एम्प्लॉइज है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? 3600 अपॉन 26700 इंटू 360. अब ये क्या कर रहे हो आप? बहुत लंबा कैलकुलेशन में पढ़ रहे हो. कैलकुलेशन में पढ़ रहे हो, वाई टू गो इनटू कैलकुलेशन, राइट? यूज द ऑप्शंस. ठीक है, अच्छा देखो 26 डिग्री कितना होगा? लेस देन 10%. अच्छा देखो 36 डिग्री 10%, 360 डिग्री 100% के बराबर होगा. ठीक है, 100% के बराबर है. अच्छा 267 अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे 26 इंटू 1.5 कितना होता है? 26 इंटू 1.5 होता है 39. ठीक है, तो ये थोड़ा 15% से कम है, अप्रोक्सीमेटली 15% से कम है. ठीक है, 15% में कितना डिग्री आना चाहिए? देखो 10% पे आएगा 36 डिग्री. मैं बहुत रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 15% में कितना आना चाहिए? 54 डिग्री. ये 15% से थोड़ा सा कम है,
तो 54 से थोड़ा कम यही वैल्यू आ सकती है। दिस इज 10%, ठीक है, ये 10% से थोड़ा कम आएगा, पर ये 10% से ज्यादा है ना, दिस इज मोर देन 10%। सो यू डू नॉट हैव टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर के चक्कर में समय बर्बाद होता है। सी द ऑप्शंस आर फार अपार्ट, ठीक है, 26.4 है, रिजेक्ट कर दो, 10% भी नहीं है, राइट। दिस इज 35.3 डिग्री विच इज लेस देन 10%, दिस इज मोर देन 10%, राइट। 36/267 अगर मैं कहूँ, दिस इज मोर देन 10%, राइट। 58.4 मोर देन 15% है, ठीक है। हमने एक रफ एस्टिमेट निकाला, रफ 26 इंटू 1.5 39, उससे कम है, 15% से कम है, राइट, लेस देन 15%, सो दैट विल बी द आंसर, ओके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ठीक है, जिससे इफ यू वांट टू गेट इवन क्लोजर आंसर, अगर क्लोज ऑप्शंस होते सो यू कैन इवन गेट क्लोज ऑप्शन, ठीक है। इसलिए कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 2/3, 1/3, 2/3 ये सब की वैल्यूज पता है, यू शुड नो दोस, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, राइट। 1/3 होता है 0.33, 2/3 होता है 0.67, ठीक है, 2/3 होता है 0.67। अब मैं इसको ऐसे देखूं, अगर 2.67 देखूं तो मैं कह नहीं सकता हूं 2 + 2/3 मतलब 8/3, ठीक है। और मैं 36 इंटू डिवाइडेड बाई 8/3 करूंगा तो ये आ गया, ये आ रहा है मेरा 9/2, तो ये आ जाएगा मेरा 27/2, 13.5%, राइट, 13.5%। अगर मुझे और परसेंटेज बहुत एक्यूरेट निकालना है, अगर मुझसे परसेंटेज पूछा होता तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 13.5%, ओके। खैर इतना सब नहीं करना है, वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर परसेंटेज पूछा होता कितना परसेंट है, तो अगर आपको आंसर निकाला होता परसेंटेज, यहाँ पे आपको डिग्री में निकालना है, तो वी जस्ट डिड सम रफ कैलकुलेशन, राइट। 36/100/267 100 निकालना था, ठीक है। नाउ दिस इज लेस देन 10%, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10%, ठीक है, बट ये 10% से ज्यादा वैल्यू है, बट ये 15% से कम है, ठीक है, डेफिनेटली 15% से कम है, क्योंकि 15% कितना होता, अराउंड 4000 होता। सो 15% 54 डिग्री, 54 डिग्री से कम आंसर आना चाहिए था, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव टू बी एग्जैक्ट इन दैट, ठीक है। ऑल राइट, फीमेल एम्प्लॉइज कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ HPCL? HPCL में फीमेल वर्कफोर्स कितना परसेंट है? So you have to tell that how much is female workforce in HPCL. You know how to read values. ग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, राइट। इट गिव्स यू टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है, इट गिव्स यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एम्प्लॉइज, टोटल मेल एम्प्लॉइज इज 17,000। सो इससे आप कंपनी वाइज मेल एम्प्लॉइज निकाल सकते हो। सो this minus this value, right, this minus this value will give you the number of female employees, correct? पर आपको फीमेल एम्प्लॉयज निकालने नहीं है। I'll tell you why. देखो कई बार क्या होता है, कई चीजें हम गलत करते हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं मतलब हम कुछ चीजों को वी कैन इम्प्रूव ऑन सर्टेन थिंग्स, वी कैन डू डेफिनेटली डू बेटर थिंग्स, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट फाइंडिंग द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, राइट, बट डिड इट आस्क फॉर द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज? कहीं पूछा है फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है? नहीं पूछा है ना। सो व्हाई टू फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, बट आई कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज। मेल एम्प्लॉइज मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई तो करना है, राइट। So I know that male plus female will be 100%, ठीक है, मेल प्लस फीमेल 100% है, मैं मेल एम्प्लॉइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, ठीक है।
सो व्हाई शुड आई फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज? मैं मेल एम्प्लॉयज का परसेंटेज निकाल लेता हूँ. मेल एम्प्लॉयज का कितना परसेंट होगा? 17,000 का 18%. सो 170 इंटू 18. और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 3600. सो व्हाई शुड आई फाइंड द नंबर ऑफ these things, right? So what do I get? So I'll get, I mean, into 100, of course, that will be this thing, right? So that is 2, 170 by 2, 85%. Male employees so direct nikal gaya na. I do not have to do anything. I do not have to count the number of female employees. I have to tell the percentage, right? So male employees 85% aa gaya, female employees 15% aa jayegi, bas kaam khatam. So these are certain things that you learn through practice, and if some people like us, I mean, if you teach, if we teach such things to people, right, they learn these things, right? So यही चीज आपको differentiate करती है एग्जाम में. ठीक है, I also can calculate, anyone can calculate. ठीक है, कुछ लोग टाइम लगाएंगे, we can calculate that directly, right? Did you understand that we are asked the percentage of female employees, right? If I can find the percentage of male employees, I can tell the number of female employees. ठीक है, तो मुझे female employees निकालने ही नहीं है. I can just find the percentage of male employees and get the answer. All right, चलिए next question करते हैं. Find the average number of female employees. इन तीनों में एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज निकालना है, राइट? जरा आई जस्ट क्लोज द विंडोज. थोड़ा आज द डॉग्स आर बार्किंग अ लॉट, राइट? यू मस्ट बी गेटिंग सम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड. Okay, so निकाला average number of female employees. So I'll tell you a smart way in this case also, right? देखो पहले क्या कर लो, फीमेल एम्प्लॉइज इंडिविजुअल ना निकाल के टोटल निकाल दो, right? So whenever you have to find average of 3 different items, find the total, right? Why to find 3 different things, right? तीनों का अलग अलग फीमेल एम्प्लॉइज निकालोगे बहुत टाइम लगेगा. So what will I do? I'll add this 105, 15900, right? Total is 15900, correct? इन तीनों के मेल एम्प्लॉइज निकाल दो. Do not find separately, right? Do not find separately. तीनों एक साथ ऐड कर दो. SR is 20%, IOCL is 16% and Reliance is 22. तो कितना हो गया? 42, 58, right? अच्छा, 17,000 का 58% निकालना है, right? 58 into 17, 17 8 is 136, 13 carries 98. ठीक है, so that will be the number of no sorry, see आ रहा ना 98 ONGC. No, I have done something wrong. अच्छा, no, this is not this. ONGC नहीं था. SR, IOCL and Reliance. Sorry. So this is 60%. ठीक है, 60%. So 60% तो और भी आसान है. 60 is 1020, right? So आ गया 5700, right? 5700 divided by 3, 1900. So remember this thing, totality thing. राइट? कैलकुलेट ऑलवेज यूजिंग द टोटल, डू नॉट कैलकुलेट सेपरेटली. ठीक है, ये भी एक पाई चार्ट की लर्निंग होती है. ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा निकालने में. कैलकुलेट द टोटल, दैट इज द इजीएस्ट थिंग. ठीक है, उसको बाद में 3 से डिवाइड कर लो. अगर आप इंडिविजुअल एसआर का निकालते, इंडिविजुअल आईओसीएल का निकालते, इंडिविजुअल रिलायंस का निकालते, बहुत टाइम लगता. राइट? सो रिमेंबर दिस थिंग.
Next question. The total number of female employees in ONGC is approximately what percent of the total female employees in these companies? Total number of female employees in ONGC is approximately what percent of the total number of female employees in these companies? इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो टोटल एम्प्लॉइज हमने बिगनिंग में निकाला था 26,700. ठीक है 26,700 और फीमेल एम्प्लॉइज नहीं मेल एम्प्लॉइज कितने 17,000. तो फीमेल एम्प्लॉइज है 9,700. ठीक है सो फीमेल एम्प्लॉइज है 9,700. So this part you have to find the number of female employees in ONGC. ONGC की फीमेल एम्प्लॉइज कितनी हो जाएंगी 7,200 minus 22% of 17,000. Right? 7,200 minus ये आ रही है 3740 दैट इज 3460. ठीक है 3460 अराउंड 35%. ठीक है 3460 बाय 9,700. राइट तो आपको पता है 35-36% के आसपास आएगा. राइट 32 ये तो बहुत कम हो गया ना. सारे ऑप्शंस कम ही दिए. सो दैट इज डायरेक्टली डूएबल. इट विल बी 35.67. अब आपको आर्ग्यू नहीं करना है. नो इट विल बी 35.3 35.7. राइट उतना डिटेल में जाना ही नहीं है. अप्रोक्सीमेट. सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू मस्ट नो कि फाइंडिंग नॉट कैलकुलेटिंग टिल द लास्ट डिजिट. ठीक है लास्ट डिजिट तक कैलकुलेट नहीं करना. जस्ट गिव द अप्रोक्सीमेट आंसर. 35% के करीब होगा. अगर ये थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगा इसको भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो कुछ 35 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना. सो दैट्स व्हाई. ओके दैट वाज द कैलकुलेशन फॉर दिस. Okay, next question. Some male employees from HPCL joined IOCL such that the number of male and female employees in IOCL became equal. The number of such employees is approximately what percentage of the employees of HPCL? अब क्या हुआ कि HPCL से कुछ employees निकल के male employees, right? Only male employees, right? None of these रहा तो पूरा कैलकुलेट करें. None of these generally should not be the option. देखो क्या होता है ना when you get such questions in some books or like अगर कोई आप देख रहे हो कोई किसी ने mock test बनाए these people generally कभी कभी वो none of these option डाल देते हैं. But in an examination they think about and then create options. ठीक है एग्जाम में ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है एग्जाम में जनरली they will generally give you good things, right? They do not give you such things like none of these कहीं भी डाल दिया. right? वो लोग सोचते हैं कि none of these option होता है तो none of these डाल दो. They always put none of these in such scenarios wherein there is no such thing that जहाँ पे calculation करना था वहाँ none of these नहीं देते generally. They will give none of these जहाँ पे कुछ और चीजें होगी. मतलब they generally do not give such option vague option in an examination, right? अगर आप कहीं पे ऐसे टेस्ट वेस्ट दे रहे हो कहीं पे मॉक टेस्ट में इस तरह का बना सकते हैं. दैट दोज पीपल डू नॉट नो हाउ टू सेट दैट पेपर. राइट सो एग्जामिनेशन में दैट शुड नॉट बी द केस. एंड इफ दैट इज द केस देन ऑफ कोर्स यू माइट हैव टू कैलकुलेट. राइट okay so what it says is some male employees from HPCL joined IOCL such that the number of male and female employees in IOCL became equal. right so IOCL में पहले क्या कर दो आप पहले आपके यहाँ के मेल एम्प्लॉयज निकाल दो. ठीक है मेल एम्प्लॉयज कितने 16% ऑफ 17,000. ठीक है 17 into 16 कितना होता है 272. राइट सो दैट विल बी द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज. ठीक है अब यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज निकाल दो 2720 माइनस कर दो यू विल गेट 3530. ठीक है so this was the number of female employees, this was the number of male employees. right now it says that some male employees from HPCL joined IOCL. अब कुछ male employees यहाँ आ गए so that number of male and female became equal. so male female equal हो गए तो यानी कि कितने नए employees आए 810.
correct? 810 male employees. So some male employees say 810 male employees from HPCL joined IOCL. Okay. Now the question is the number of such employees. Number of such employees is 8100. 8100 is what percentage of 3600? Sorry, 810. Writing 8100, it's 810. 810 is what percent of 3600, right? 810 by 36, right? So 9 से divide हो जाएगा, so will be 90 by 4, that is 22.5%. That will be option A, right? So if you know how to read a graph, you would be able to do it, right? अगर ग्राफ पढ़ना आता है कि ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज दिखा रहा है, if I subtract the number of male employees from total employees, I will get the number of female employees, right? मुझे फीमेल एम्प्लॉइज पता है, मुझे पुराने नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज पता है, तो मुझे पता है कुछ नए मेल एम्प्लॉइज ऐड हुए, कितने हुए होंगे? नंबर ऑफ फीमेल माइनस नंबर ऑफ मेल. So I get that these are the number of new employees that were joined from HPCL. ठीक, तो HPCL में कितने हैं, मतलब वो परसेंटेज पूछ रहा है, you calculated that, that is 22.5%. ओके, राइट आंसर. ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या हुआ, थक गए लोग? ओके, सो लेट्स रैप इट अप. ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं. सो देर आर टू, देर इज अ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन विद शॉर्ट पैसेज. ठीक है, अरिथमेटिक बेस्ड, आज हमने एक सेट भी किया था. जैसे अरिथमेटिक बेस्ड, अरिथमेटिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस की. ठीक है, रेशियो वगैरह सब कुछ है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, देर आर टू क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट. होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, राइट? आंसर इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो एंड विल कम अप विथ मोर सेशंस. ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं. तो हमने पिछले 3 दिन में कुछ DI सेट्स प्रैक्टिस किए. नाउ विल हैव प्रैक्टिस ऑफ क्वांट एंड LR एज वेल. इंग्लिश की भी क्लासेस होते रहती हैं, राइट? सो प्लीज डू अटेंड दोज क्लासेस ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिविजन थिंग एंड इफ यू एंजॉयड दिस क्लास, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन. ठीक है, लाइक कर दिया करो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स. जो आपके फ्रेंड सर्कल है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको रिकमेंड कर सकते हो, राइट? लेट देम आल्सो प्रिपेयर एंड द मोर पीपल ज्वाइन इन, राइट, द बेटर यू नो योरसेल्फ, राइट? अगर आप 10 लोगों के बीच में स्टैंड कर रहे हो, उसके कंपैरिजन में 1000 लोगों, 500 लोगों के बीच में, तो यू नो दैट योर रियलिटी, राइट? अगर आप आइसोलेशन में प्रिपेयर करते हो, यू डू नॉट नो कि आपकी प्रिपरेशन और लोगों के कंपैरिजन में कितनी है, राइट? सो इफ देयर आर मोर पीपल, you'll be able to evaluate yourself better कि आप भीड़ में कैसे स्टैंड करते हो and how do you need to improve. And I hope you enjoyed today's session. ठीक है, TSD वाली चीज, नई चीज सीखी होगी, right? Do practice questions using that. You'll feel that it's a great way to solve questions. Okay, and these are our faculty members, right? These are mentors at Gradeup who are best in the field, right? Probably you won't get this best set of faculty members at one single platform, right? Best educators at one single platform. So they teach at Gradeup and these are we have launched one course for CAT 2022 as well. कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर आपकी नज़र में भी कोई है जो 22 की प्रिपरेशन कर रहा है, यू कैन रिकमेंड देम, राइट? इवन इफ यू आर नॉट एनरोलिंग, इफ समवन आस्क यू, कई बार लोग पूछते हैं, जैसे आपके कोई पहचान का है, यू कैन रिकमेंड देम दैट दीज आर आवर मेंटर्स एंड दे वुड बी टीचिंग एट ग्रेडअप. और कोर्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह वो सब आपको चीज़ें मिलाई जाती हैं, और ऑल आर लाइव क्लासेस एंड यू गेट प्रैक्टिस मटेरियल एज वेल with these. Okay, so I hope you enjoyed today's session. Don't forget to like the session before you leave it and do solve that homework question. कल मुझे अच्छा लगा, काफी लोगों ने सॉल्व किया था, राइट? आज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एंड विल कंटिन्यू योर प्रैक्टिस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट.